Please do give us your feedback by scanning the QR code here. The QR code, please. Thank you. Before we move to the last session of the day, we would like to express our gratitude towards our sponsors. Platinum sponsors, NTT Data and ServiceNow. Health Tech sponsor, Optum. Gold sponsors, Sopra Steria, Ernst & Young, Hughes Steak Corporation. Lanyard sponsor, Global Logic. Silver sponsors, BSI, Make My Trip, Visible Alpha, VisionNet, and R1 RCM. Skilling partner, Future Skills Prime. Workshop partners, HFI, Nagarro, and Taskus. Huge round of applause for all the sponsors. Okay, so that brings us to the last section, but a very inspiring one indeed. And the phrase that comes to my mind to introduce the honored guest is, success comes to those who dare to achieve it. A little about the esteemed guest. Less said is more. It's someone that we're talking about who's part of the Indian field hockey team. At 15, she became the youngest player in the national team and participated in the 2010 World Cup. Till now, she has played 212 international matches and scored 134 goals. Currently a part of the team, the Indian women hockey team, the well-known striker who has been honored with the coveted Padma Shri for her contribution. Everyone, please put your hands together. It's an honor to have her here. Shri Padma Shri Rani Rampal. I would like to invite Sangeeta Gupta, Senior Vice President, NASCAR, Fireside Chat, Padma Shri Rani Rampal. What an honor to have you guys here. Thank you all, and it's a pleasure to see so many of you who've stayed back despite the Gurgaon traffic on the way back. Clearly demonstrate, Rani, आपका कितना importance है और कितने लोग आपको यहाँ पे सुनना चाहते हैं. Thank you so much for joining us today. We're truly honored that you're here to come and share your story with all of us. Since everybody in the audience may not know about your story and kaise shuru hui, we'd love to see you quickly talk about, how you started from a small town in Haryana to becoming the whole captain of the Indian hockey team, and your struggles and learnings in that whole journey. So if you can just briefly tell us about your story. And I mean, I saw her videos and I can tell you, it was truly a goosebump moment for me. So thank you so much. Love to hear your story. First of all, thank you so much, ma'am, for giving me this opportunity to be here and share my story. And thank you so much to all of you. आप सभी यहाँ पे आए, मेरी struggle story सुनने के लिए. And I know आप सभी किसी न किसी फील्ड में जिसमें भी आप काम करते हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रगल आप लोग भी लाइफ में आपने किया होगा या स्टिल कर रहे हैं. बिकॉज स्ट्रगल तो हमेशा लाइफ में चलता रहता है साथ साथ ना, जब तक एक इंसान इस दुनिया में रहता है. सो मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ. हरियाणा में एक छोटा सा टाउन है शाहबाद मारकंडा, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में. आपने शायद कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट तो सबने सुना होगा. मैंने 7 इयर्स की एज में हॉकी खेलना शुरू किया था एंड एक गवर्नमेंट स्कूल में हॉकी खेलना शुरू किया था. वहाँ पे काफ़ी बच्चे खेलते थे और उस टाइम पे काफ़ी लड़कियाँ जो हैं इंडियन टीम में उस टाइम खेलती थी. तो उनको देख के मुझे लगा कि मुझे भी हॉकी खेलना है, लेकिन इतना इजी नहीं था. अपने आप को तो बोल लिया कि हॉकी खेलना है. हरियाणा में आज से अगर 20-22 साल पहले की बात करो,
तो लड़कियों को घर से निकलना बहुत मुश्किल था। स्पोर्ट्स करना तो बहुत ही दूर की बात थी कि जहाँ लड़कियों को स्पोर्ट्स के लिए भेजा जाए। तो जब पहली बार मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे हॉकी खेलना है, एंड ऑफ कोर्स हर पेरेंट्स चाहता है उसका बच्चा लाइफ में तरक्की करे, सक्सेस हो, कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं होगा जो नहीं चाहता, लेकिन उनके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारी मजबूरियां होती हैं जिसके कारण वो कई चीजें नहीं कर पाते चाह के भी। तो मेरे पेरेंट्स का भी ऐसा ही था कि जैसे जिस सोसाइटी से हम आते थे, क्योंकि छोटा टाउन था तो लोगों की मेंटालिटी थोड़ी वैसी होती है वहाँ पे कि नहीं आप लड़की को बाहर मत भेजो, बाहर भेजोगे स्पोर्ट्स के लिए तो आपको एक दिन बैड नेम ही लेके आएगी, एंड 7 इयर्स की एज में इमेजिन वो बच्चे को कितना हर्ट होता होगा कि जब ये बातें सुनने को मिलती हैं, क्योंकि उस टाइम आप इतने मैच्योर भी नहीं होते, आपको सोसाइटी का पता ही नहीं है कि सोसाइटी क्या होती है। आपको सिर्फ बात पिंच कर रही है कि जो उन्होंने बोली है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं खेलने दिया जा रहा। लेकिन धीरे धीरे पेरेंट्स को मनाया एंड उन्होंने अलाउ किया खेलने के लिए, बट स्टिल उनके अंदर एक वो फियर कहीं ना कहीं रहता था कि हमें फिर से लोग कुछ बोलेंगे, फिर से लोग कुछ बोलेंगे। मैंने उनको भी यही बोला कि आप जस्ट मुझे एक बार चांस दो खेलने के लिए, एंड अगर नहीं कुछ अच्छा किया उसके बाद घर में तो रहना ही है या पढ़ाई तो करनी है, जो थोड़ी बहुत आप लोग कराओगे वो तो करेंगे ही क्योंकि उस टाइम पे उनका भी वही टारगेट था कि ठीक है हमारे पास लड़की है तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, 10 क्लास तक पढ़ा देंगे, उसके बाद शादी कर देंगे। वो मतलब वहां पे उस टाइम पे आज से 20-22 साल पहले वही ट्रेंड था। और आजकल तो चलो बहुत सारी चीजें चेंज होगी, बट फिर भी बहुत सारे रूरल एरियाज में अभी भी ऐसा है। बहुत सारा स्ट्रगल रहा है इस जर्नी के लिए कि मेरे फादर जो थे वो एक कार्ट पुलर थे, रेड़ा घोड़ा चलाते थे, एंड बड़ी उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। हम 3 भाई बहन हैं, 2 मेरे बड़े ब्रदर हैं, मैं सबसे छोटी थी। तो एक टाइम ऐसा भी था कि हॉकी तो दूर की बात है खेलने के लिए, क्योंकि जैसे आपको इक्विपमेंट्स चाहिए, सब कुछ चाहिए, बट ऐसा भी हमने टाइम देखा है अपने कि हमें ये नहीं पता कि हमारे घर में सेकंड अगर एक टाइम हमने खाना खाया तो सेकंड टाइम खाना आएगा कि नहीं आएगा। सो इतना इजी तो नहीं था यहाँ तक पहुँचना, बट एक अंदर जुनून था कि कुछ करना है लाइफ में ना। ट्रूली इंस्पिरेशनल रानी, क्योंकि यू कांट इवन इमेजिन कि उस टाइप के बैकग्राउंड से आके आप इतना आगे बढ़ सकते हो। बट जस्ट टू बिल्ड ऑन दैट, हॉकी के लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, एंड विद द हम्बल बैकग्राउंड दैट यू केम फ्रॉम, हाउ डिड यू मैनेज ऑल ऑफ दैट? बिकॉज दैट मस्ट हैव बीन ऑल्सो अ स्ट्रगल, राइट? बिकॉज स्कूल में आप हॉकी खेल सकते हो, पर उसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, जो आपको पूरा फिटनेस के लिए चाहिए, वो सब आपने कैसे मैनेज किया? मैम जैसे मेरे फादर थे वो दिन का हार्डली मुझे लगता है कोई 80 रुपीज़ उस टाइम पे कमाते होंगे, तो ये सब तो बहुत मुश्किल था, हॉकी स्टिक खरीदना, शूज़ या जो भी हॉकी के इक्विपमेंट्स होते हैं। बट मैं काफ़ी लकी थी कि मुझे बहुत अच्छे कोच मिले कि जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरे लाइफ में, कि इक्विपमेंट में काफ़ी सपोर्ट किया कि मुझे हॉकी स्टिक दी। या उसके बाद क्या होता था कि जैसे वहाँ पे हमारी एकेडमी में यही होता था कि वहाँ पे सब किसी भी फैमिली से बच्चा आए, कोई अच्छे घर से आए, कोई कैसे भी आए, सबको सेम ट्रीट किया जाता था, क्योंकि वहाँ पे सबकी मेहनत देखी जाती थी, डिसिप्लिन देखा जाता था कि जो बच्चा डिसिप्लिन में रहेगा, मेहनत करेगा एवरी सिंगल डे, उसी को जो है खेलने का चांस आगे मिलेगा। अगर ऐसा नहीं है कि कोई अगर अच्छी फैमिली से आया तो उसको चांस ज़्यादा मिलेगा। तो वो सबसे एक अच्छा हमारे पास प्लस पॉइंट था कि हम मेहनत कर सकते हैं, कि हम अगर मेहनत करेंगे तो कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा ही था कि हॉकी स्टिक उन्होंने दी। फिर धीरे धीरे क्या होता था कि अगर हम अच्छा खेलते तो हमारे जो सीनियर प्लेयर्स होते थे वो हमें कभी उन्होंने शूज़ प्रोवाइड कर दिए या कभी किट प्रोवाइड कर दी। तो ऐसा करके हमें सपोर्ट धीरे धीरे मिला। लेकिन स्टार्टिंग में यही था, जैसे हम पीटी शूज़ डाल के खेलते जो 60 रुपीज़ के आते थे उस टाइम पे, मतलब तो अगर 80 रुपीज़ मेरे फादर कमा रहे हैं तो अगर मैं 60 रुपीज़ के शूज़ ही ले रही हूँ, तो जिसमें हम 7 मेंबर्स फैमिली में हैं, तो इमेजिन कि
वो कितना मुश्किल होता होगा कि वो कितना हम फिर पीछे उसमें फादर के ऊपर कितना प्रेशर आ जाता उस चीज का ना। एंड आई वॉज लकी कि शायद उन्होंने ऐसे संस्कार भी दिए थे कि कभी किसी चीज की जिद भी नहीं की हालात को देखते हुए ना, कि नहीं हमें ये चीज चाहिए ही चाहिए। ये था कि मेहनत कर सकते हैं, एक जुनून था अंदर कि हम ये सब चीजें बदल सकते हैं मेहनत करके ना। और वही सब चीजें की, क्योंकि फादर साहब को हमेशा ही देखा था कि उन्होंने हमेशा कभी गर्मी कभी ठंड कुछ नहीं देखा। उन्होंने ना बहुत मेहनत की, लोगों की उन्होंने इतनी इतनी इंटेड होते थे वो, तो हमें लगता था कि अगर वो इस उम्र में काम कर सकते हैं तो हम तो बिल्कुल कर सकते हैं, इतने यंग हैं। बस ये था कि ईमानदारी से काम करना है, उन्होंने यही सिखाया था, ईमानदारी से हमेशा काम करना है। और बेशक थोड़ा कम खाओ लेकिन अपनी मेहनत से कमा के खाना, कभी ऐसा मत सोचना कि टीम हमें बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाए। तो बस दिल में जुनून था कि कभी तो लाइफ बदलेगी, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। और कभी गिव अप नहीं किया लाइफ में ना। बहुत सारे हालात, बहुत सारा टाइम ऐसा आया जब लगता था कि छोड़ दें या छोड़ देना चाहिए, अब इससे आगे कुछ नहीं होगा। और लेकिन ये था कि ठीक है, लगे रहना चाहिए, मेहनत कभी तो रंग लाती है, ऐसा नहीं है। और आई एम सो ब्लेस्ड, परमात्मा ने साथ भी बहुत दिया, ऐसा नहीं है, उसकी कृपा बहुत रही है हमेशा से कि जैसे जैसे मेहनत की वैसे वैसे जिंदगी में आगे भी बढ़े और हौसला भी मिला काम करने के लिए ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत से हम कुछ भी बदल सकते हैं लाइफ में। एंड एक सपना था। आपका एक सपना, आपने जो बात की है कि आपको खेलना था, जीतना था, क्योंकि आपको पक्का घर बनाना था अपने पेरेंट्स के लिए। कैन यू टॉक टू अस अबाउट दैट? यस, जब हम बचपन से घर में रहते थे तो हमारे पास कच्चा घर था मिट्टी का, और जब बारिश वगैरह आती थी तो हमारे घर में बहुत पानी भर जाता था। तो हम हमेशा प्रेयर ही करते थे सिर्फ ना कि भगवान बारिश ना आए, क्योंकि हमें पता था कि जो कुछ भी है वो सब खराब हो जाएगा घर में। तो सपना था, यही सपना सोच के हॉकी शुरू की थी कि एक दिन कभी कुछ ऐसा करना है लाइफ में कि पेरेंट्स को एक अच्छा घर बना के देना है, वो अच्छी जगह पे रहें। और उन्होंने लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है, तो एटलीस्ट वो जो उनकी बाकी लाइफ है वो एक अच्छे से गुजारें। एंड 2017 में ही, बहुत सालों के बाद, मैंने 2001 में हॉकी शुरू की थी एंड 2017 में मैंने एक अच्छा घर बनाया बहुत साल मेहनत करने के बाद। एंड आज सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की होती है कि मेरे पेरेंट्स जिन्होंने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया लाइफ में, आज वो एक अच्छी जगह पे रहते हैं। एंड एक ऐसा टाइम भी हमने देखा है कि जब एकेडमी में हमारा रूटीन होता था कि हमें सुबह 4 बजे उठना है, 4:30 घर से निकलना है, एंड 4:30 निकल के हम वहीं से 5 बजे हमारा ग्राउंड शुरू होता था। तो 5 बजे से लेके 7:30 पौने 8 तक ट्रेनिंग होनी है। नो मैटर, आप नॉर्थ में आप सबको पता है कि दिसंबर जनवरी में कितनी ठंड होती है, कोहरा पड़ता है, और जून जुलाई में कितनी गर्मी होती है। तो वो कभी रूटीन चेंज नहीं होती थी, दुनिया इधर से उधर हो जाए, इतने स्ट्रिक्ट कोच थे हमारे पास ना कि आप बीमार हो, आपकी फैमिली में क्या हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं था किसी चीज से ना। उनको सिर्फ ये था कि आपको ग्राउंड में आना ही आना है और यहाँ पे आके काम करना है। तो 7:30 पौने 8 तक वहाँ आप ट्रेनिंग करोगे, और उसके बाद हम स्कूल की ड्रेस साथ लेके जाते थे, वहीं से ड्रेस चेंज की, सुबह 4 बजे खाना, पूरे दिन का खाना घर से लेके जाते थे। एंड स्कूल जाना है, स्कूल में पढ़ाई करनी है। और स्कूल में भी ऐसा नहीं कि आप कभी छुट्टी मार गए, बंक मार लिया कि ठीक है आज नहीं जाते, थके हुए हैं। स्कूल में भी वो हमेशा जाके पूछते थे टीचर्स को कि आज कौन बच्चा स्कूल में नहीं आया, क्योंकि उनको ये था कि स्पोर्ट्स के साथ साथ स्टडी भी करनी है, कि अगर बाय चांस, सब बच्चे तो इंडिया नहीं खेल सकते ना, जितने भी शुरू करेंगे, तो अगर कोई इंडिया नहीं भी खेल पाया तो वो एटलीस्ट स्टडी के साथ कुछ कर सकता है। देन वहीं से ड्रेस शाम को चेंज करके 2:30 बजे फिर ग्राउंड में जाना है। शाम को आप घर आ रहे हो, आपको स्कूल से होमवर्क भी मिलता है करने के लिए। एंड जब आप रात को करने लगते हो, पहली बात तो आप इतना ज्यादा थक जाते हो सारा दिन काम करके, ग्राउंड में ट्रेनिंग करके। दूसरा, आप काम करने लगते हो, आपके घर में लाइट नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप कैंडल्स जला रहे हो या केरोसिन के तेल का जो दिया होता है, उस टाइम तो हम वही जलाते थे क्योंकि कैंडल्स तो बाय नहीं कर सकते थे। फिर आपको सुबह 4 बजे उठना है, तो फोन तो उस टाइम थे ही नहीं घर में, एक अलार्म क्लॉक भी नहीं है, तो 4 बजे कैसे उठोगे आप ना। तो मम्मी बेचारे वो पूरी रात ऐसी, कभी सोना है कभी जागना है, कि ऐसी आसमान को देख के आप बिलीव नहीं करोगे, बट ये सच है कि
वो ऐसा देख के टाइम का अंदाजा लगाते थे कि इसको सुबह उठाना है, क्योंकि अगर नहीं उठाया, लेट हो गए, तो हमारे कोच इतने स्ट्रिक्ट थे ना कि वो बहुत मारते थे, सच में इतनी पनिशमेंट देते थे। एंड आज भी मैं उनकी बैक के पीछे उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट है कि वो मारते थे, लेकिन आज शायद उस बंदे के कारण ही हम जो हैं आज वो हम बन पाए हैं। Truly, there's no substitute for hard work and persistence. I think आप really वो demonstrate करते हो आपने कैसे किया despite all the hardships that you went through. Let's move to I mean, for a lot of us, Chak De India was that one movie जहाँ पे आपने women hockey को recognize किया. What did that movie signify for you, right? क्योंकि आप तब बहुत छोटे थे, आपने hockey just खेलना शुरू किया होगा या पता नहीं खेलना भी नहीं शुरू किया होगा. But how did you think that made a difference to more girls wanting to play hockey, or that feeling कि हम भी जीत सकते हैं? आई थिंक चक दे इंडिया 2007 में आई थी, लेकिन उससे पहले हमने जो एक रियल चक दे इंडिया है वो हमने अपनी एकेडमी में देखी थी, इन द सेंस के 2002 जो मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड आया था वुमेन्स हॉकी का, उस टाइम हमारी एकेडमी से भी लड़कियां खेली थी वहां पे। एंड जब वो वापस आई खेल के तो उनका जो ह्यूज वेलकम हुआ उस टाइम पे, और मैंने तो जस्ट हॉकी शुरू ही की थी, 1-1.5 साल हुआ था, तो 7 इयर्स मतलब लगा लो 8 इयर्स के बच्चे के सामने अगर कोई इतना किसी को रिसीव कर रहा है, उसको इतना वेलकम उसका हो रहा है, तो उसको तो कितनी इंस्पिरेशन मिलेगी कि मुझे भी कुछ करना है, यू नो, कंट्री के लिए मुझे भी खेलना है। तो हम जिस एकेडमी में खेलते थे, शाहबाद मारकंडा, आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट वुमेन हॉकी एकेडमी है, जहां से अभी तक अबाउट 50 वुमेन्स हॉकी प्लेयर्स इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। सो बहुत छोटा सा टाउन है। जब मूवी आई तो मूवी हमें अच्छी लगी देखने में, बिकॉज मूवी से जो है लोगों में वुमेन्स हॉकी के लिए काफी अवेयरनेस आई, लोगों को पता चला उसके लिए ना। लेकिन मेरे लिए तो वही था कि जब मैं भी इंडियन टीम में रिप्रेजेंट, मैंने डेब्यू किया था 2008 में, तो उस एकेडमी से 9 प्लेयर्स जो है वो इंडियन टीम में खेलते थे। 9 लड़कियां, मतलब 18 की टीम में से 9 लड़कियां एक एकेडमी से खेल रही हैं, तो हमारे लिए वो एक रियल चक दे इंडिया जो एवरी सिंगल डे हमें देखने को वहां मिलती थी ग्राउंड में जब हम खेलते थे। तो बहुत सारा काम हुआ है वहाँ पे, बहुत साल लगे इतने सारे लड़कियों को यू नो बनाने के लिए। सबसे पहले कि वो एक जो बोलते हैं ना, शुरुआत करने के लिए, उस एरिया में शुरुआत करने के लिए, कि स्पेशली उस स्कूल में शुरुआत करने के लिए जहाँ पे लड़कियों को सिर से दुपट्टा भी उतारने नहीं देते थे, तो वहाँ लड़कियों को शॉर्ट्स और शर्ट डाल के खेलना तो बहुत मुश्किल था। वो स्कूल की मैनेजमेंट को मनाना, फिर सबके पेरेंट्स को मनाना, वो सब डिफिकल्ट था बहुत। लेकिन शायद लगता है हमें भी, हमने अपने कोच से सीखा है कि जिंदगी में अगर कुछ ठान लो करने के लिए, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते, लेकिन एक जुनून होना चाहिए, एक आप ईमानदार होने चाहिए काम करने के लिए, एक डेडिकेशन होनी चाहिए वो करने के लिए। एंड प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, आप सब लोग डेली काम करते हो, डिफरेंट कॉर्पोरेट्स में काम करते हो, एंड डिफरेंट तरह के लोगों के साथ काम करते हो, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है या स्ट्रगल नहीं है, सब हर कोई कुछ ना कुछ स्ट्रगल फेस कर रहा है। लेकिन अगर हम सिर्फ उसके बारे में सोचते रहेंगे, स्ट्रगल एंड प्रॉब्लम्स के बारे में, तो वो डेली वैसे ही रहेंगी और हम उससे कभी बाहर नहीं आ सकते। अगर ये सोच लेंगे कि ठीक है ये ऐसे ही रहेंगी, ठीक है हम इसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, इसको साथ साथ फेस करके कैसे काम कर सकते हैं। सो मेरा यही मानना है कि लाइफ में कभी गिव अप नहीं करना चाहिए और प्रॉब्लम से कभी भागना नहीं चाहिए, बिकॉज प्रॉब्लम से भाग के हम, प्रॉब्लम वहीं की वहीं है, हम तो भाग रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहीं की वहीं है, वो चेंज नहीं हो रही है। सो प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम फेल ही हो जाएंगे, उसको मतलब और तो कुछ नहीं होगा, उससे भी हमें कोई ना कोई लेसन ही मिलेगा कि अगर हम फेल हो गए तो हम नेक्स्ट टाइम और अच्छा कैसे कर सकते हैं। Truly, and you know, आपका चक दे moment was the 2020 winter Tokyo Olympics, right? Reaching the semi-finals, having very narrow misses. Truly, I think India women hockey made its real mark at Tokyo Olympics. So,
what drove you to that, to perform the way the team performed, right? Was it your leadership? Was it the coach who made the difference? Was it the fitness that the team invested in? I'm sure it's a combination of all of these things. But what was the driving factor that really differentiated the Indian women hockey team at the Tokyo Olympics? टोक्यो ओलंपिक्स में जो भी सक्सेस वुमेन्स हॉकी को मिली है, आई थिंक इसका क्रेडिट जो है वो बहुत सारे प्लेयर्स को, कोचेस को जाता है जिन्होंने शायद ये जर्नी शुरू की थी. समटाइम्स क्या होता है कि जैसे बोलते हैं ना, पेड़ कोई और लगाता है लेकिन फल कोई और खाता है उस चीज का. सो मुझे लगता है कि जो इसका बीज था वो बहुत साल पहले जो हमारे पुराने प्लेयर्स थे या कोचेस थे, तो उन्होंने ये शुरुआत की थी कि वुमेन्स हॉकी को धीरे धीरे, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता, उसके बाद फिर 2006 में उनका सिल्वर आया, देन एशियन गेम्स में उन्होंने मेडल्स जीते. उन्होंने भी बहुत ट्राई की कि वो ओलंपिक्स में क्वालिफाई करें, बट नहीं कर पाए, क्योंकि उस टाइम पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं होती थी जितनी आजकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं. लेकिन टोक्यो ओलंपिक्स का एक और रीज़न था कि 2020 में होना था टोक्यो ओलंपिक्स, देन कोविड आ गया. आप सबको पता है कोविड में सबने कितना कुछ फेस किया है. फैमिलीज़ में बहुत सारे लोग खोए हैं, बहुत सारे लोगों ने जॉब्स खोई हैं. स्टिल अभी भी स्ट्रगल वो उस चीज़ से कर ही रहे हैं बहुत सारे लोग ना. तो हमारे साथ भी ऐसा ही था कि हम नेशनल कैंप में थे, और नेशनल कैंप में आप लॉकडाउन में 6 मंथ एक ही जगह पे हो, एक ही रूम में हो, आप रूम से बाहर नहीं जा सकते, रूम के अंदर ही आपको ट्रेनिंग करनी है अगर आपको करनी है. उस टाइम तक डिसाइड नहीं हुआ था कि ओलंपिक्स होना है या नहीं होना, मतलब था कि होना है. तो आप उसी माइंडसेट के साथ ट्रेनिंग कर रहे हो कि होना होगा, तो हम रेडी होने चाहिए उस चीज के लिए ना. देन सडनली डिसाइड हो गया कि ओलंपिक्स पोस्टपोन हो गया. देन 1 साल एक एथलीट के लिए बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज एवरी सिंगल डे आपको सेम माइंडसेट, सेम फोकस के साथ काम करना पड़ता है. देन 1 साल हमने बहुत डिफिकल्ट टाइम देखा, वो कोविड वाला टाइम ना, क्योंकि रात को सोने से पहले या उठने से सुबह पहले एक अजीब सा डर रहता था दिल में ना, कि कोई फोन ना आ जाए घर से या कहीं से ना, कि आज ये हो गया, आज वो हो गया. क्योंकि उस टाइम पे ये हालात चल रहे थे कंट्री में ना, ऑक्सीजन की कमी है, लोग ऑक्सीजन के कारण किसी की डेथ होगी, तो वो एक अजीब सा डर था. लेकिन जब टोक्यो में गए तो सबके दिमाग में एक ही चीज थी पूरी टीम के, कि हम बहुत कुछ फेस करके आए हैं, मेंटली हमने ज्यादा स्ट्रगल किया है, तो अभी हमारा कुछ करने का टाइम है और हम बेस्ट ट्राई करते हैं एज अ टीम. अगर जो भी होगा हम बाद में देखेंगे रिजल्ट. एंड पहले 3 मैच हमने हारे भी टोक्यो ओलंपिक्स में. देन सबने उम्मीद भी छोड़ दी कि वुमेन्स हॉकी तो अब कुछ करेगी नहीं, क्योंकि 3 मैच हार चुके हैं. लेकिन हमने हार नहीं मानी थी. हमें था कि अगर अभी भी हमारे पास 2 मैचेस हैं, हम वो जीत के भी हम क्वार्टर्स के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं. देन सबने एज अ टीम हमने डिसाइड किया एंड एज अ टीम खेले. हमने मतलब लास्ट सेकंड तक हमने फाइट की. एंड देन जब ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वार्टर फाइनल्स था, तो वो तो सबको पता है कि सबको था कि ऑस्ट्रेलिया हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है. लेकिन हमें था कि ठीक है, हमारे पास तो लूज करने के लिए कुछ नहीं है. वो लोग पूल में अपने टॉप करके आए हैं, हमने तो वैसे भी बॉटम में फिनिश किया है, तो जस्ट प्रेशर उनके ऊपर है, हमें तो जस्ट अपनी गेम खेलनी है. एंड पहली बार हमने देखा अपनी कंट्री में कि लोगों को सुबह 6-6 बजे उठ के मैचेस देखे वुमेन्स हॉकी के, जो कि हम पहले कभी नहीं देखते थे. सो आई रियली वांट टू से थैंक यू. No, amazing story. So Rani, agar, we talk about failures, right? You talked कि पहले 3 मैच हारे. आपके लिए तो every time you go on the field, you have to be prepared for the fact that you may not succeed. And that requires phenomenal mental agility, the ability, like you said, problem to hogi, but you can't approach it only like that. You have to have the will to win. How do you deal with, and all the people here in this room and otherwise deal with issues all the time on, what will succeed, what will not fail, and dealing with failures is very hard, right? But as a sports person, आपको तो ये every day face करना पड़ता है. How do you deal with failures? Because it is so important that everybody learns to deal with problems, like you said. But आसान नहीं होता है, right? मैम आई थिंक मुझे लगता है कि दोनों चीजों को डील करना इजी नहीं होता. सक्सेस को भी डील करना इतना इजी नहीं होता, बिकॉज हर कोई सक्सेस डील नहीं कर सकता. सीरियसली फेलियर तो चलो सबके लिए डिफिकल्ट है.
फेलियर तो सबके लिए डिफिकल्ट होती है लाइफ में, हम सब फेल होते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो कभी फेल नहीं हुआ लाइफ में, किसी ना किसी फील्ड में हम सब फेल होते हैं। एंड समटाइम्स हम बहुत बार फेल होते हैं, कई बार हम एक बार फेल होके हम लेसन सीख जाते हैं। स्पोर्ट्स में बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा मेंटल टफनेस चाहिए आपको। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे ओलंपिक्स का एग्जांपल ले लो कि हमारा सेमीफाइनल मैच था अर्जेंटीना के साथ, हम 2-1 से लूज किए। मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम, मतलब जिससे कि हम पोडियम पे सीधा जा सकते थे, गोल्ड और सिल्वर के लिए खेलना था, हम हार गए। और नेक्स्ट डे हमारा ब्रॉन्ज मेडल का मैच है। तो मतलब सब इतने ज्यादा क्या बोलेंगे, इतना हार्ट ब्रेकिंग था कि हम अभी कल ऑस्ट्रेलिया से जीते हैं और आज हम अर्जेंटीना से हार गए और कल हमें फिर ब्रॉन्ज के लिए खेलना है। तो आपके पास दो चॉइस होती है, वैसे तो स्पोर्ट्स पर्सन के पास चॉइस ही नहीं होती वो कि गिव अप वाली, कि आप बोलो कि ठीक है हम कल खेलेंगे नहीं। ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि कल खेलेंगे नहीं क्योंकि हमारा आज हम सैड है, अपसेट है, हम कल लूज कर गए, वो चॉइस है नहीं आपके पास। तो आपके पास चॉइस है कि आपको जाना और आपको खेलना है। एंड देन उससे वर्स्ट क्या होता है कि आप क्या फील करोगे कि अगर आपने ब्रॉन्ज भी ना जीता, आपने अगर 100% ना दिया जाके, अपना सेम माइंडसेट से आप ना खेले, सिर्फ वही फेलियर के साथ आप जा रहे हो, वही माइंडसेट से कि हम कल लूज कर गए, अभी भी वही हमने दिल पे लगाया हुआ है उसको, तो ब्रॉन्ज तो वैसे वो मैच से पहले ही हमारे हाथ से जा चुका है वो, मतलब उसके लिए मैच आपको खेलने की फिर जरूरत भी नहीं है। सो उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए कि ठीक है जो कल हो गया उसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो भी हुआ हमने अपना बेस्ट किया, लेकिन मे भी हो सकता है दूसरी टीम हमसे ज्यादा बेस्ट थी, उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे सामने है हम उसको डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं। और उसके लिए हमें सेम माइंडसेट लेके आना पड़ेगा जिस माइंडसेट के साथ हम क्वार्टर और सेमी में गए थे, अगर हमें ब्रॉन्ज जीतना है तो। एंड हम गए उस माइंडसेट के साथ, सेम माइंडसेट के साथ गए कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और सिर्फ एक लास्ट 60 मिनट्स है, हमें जोर लगा के खेलना है, एज अ टीम खेलना है, फाइट करनी है एंड तक, और उसके बाद देखेंगे क्या होता है। एंड समटाइम्स क्या होता है ना, हम बहुत कुछ हार के भी ना हम बहुत कुछ जीत जाते हैं। सो हमने वो टोक्यो ओलंपिक्स में हमने रियलाइज किया कि हमने ब्रॉन्ज मेडल जरूर हारा है, लेकिन बहुत सारी चीजें हमने उसके अलावा लाइफ में जीती हैं। लाइक लोगों को वुमेन हॉकी के बारे में पता चला कि वुमेन हॉकी में कितनी फाइटिंग स्पिरिट है, जो शायद हम जीतते तो शायद इतनी लोगों को पता भी ना चलती, सबको इजी लगता कि इजी था वो सब करना ना। हम 4-3 से हारे जीबी के साथ। एंड सो ऐसा है कि लाइफ में ना फाइट करते रहना चाहिए एंड तक ना। समटाइम्स हम हारते रहते हैं, लेकिन ना कभी तो जरूर जीतते हैं, बट गिव अप नहीं करना चाहिए। और आई एम नॉट सेइंग कि वो इजी है, बिल्कुल भी इजी नहीं है। आप सबकी लाइफ में भी ऐसा ही होगा कि आप किसी मिशन को लेके लगे होंगे, किसी चीज को कि हमें ये करना है, आप कर नहीं पा रहे, उसके लिए डेली मेहनत भी कर रहे हो, बहुत सैक्रिफाइस भी कर रहे हो, लेकिन गिव अप नहीं करना। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है ना, हम बहुत जैसे एक माउंटेन पे जा रहे हैं ना, तो वो माउंटेन के हम बिल्कुल एंड पे पहुंच रहे होते हैं ना, तो जब ऑक्सीजन खत्म होने वाली होती है ना, तो हमें लगता है कि नहीं अब नहीं हो रहा, अब हम वापस चलते हैं। बट हमें नहीं पता होता वो माउंटेन के ऊपर का जो व्यू वहां से दिखेगा वो कितना अच्छा व्यू है। सो वहां से एक स्टेप आगे जाना बहुत मुश्किल है, पीछे आना तो बहुत ईजी है। और हम ये भूल जाते हैं कि जहां पीछे जाना वो हमें डबल रास्ता तय करना पड़ेगा वापस जाने के लिए। सो लाइफ में भी ऐसा ही है, कि जब हम कहीं पहुंचने वाले होते हैं ना, तो जैसे जैसे वहां पहुंचने लगते हैं वो रास्ते और ज्यादा मुश्किल शुरू हो जाते हैं। सो गिव अप नहीं करना चाहिए टोक्यो ओलंपिक से। और उससे पहले भी बहुत सारी फेलियर्स हमने देखी है, ऐसा नहीं है। वुमेन्स हॉकी क्वालिफाई नहीं करती थी ओलंपिक्स के लिए। सो सबसे बड़ी फेलियर हमारे लिए वो जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया है कि जैसे मैंने 2008 में डेब्यू किया था तो ओलंपिक क्वालिफाई में किया था, हमने तब क्वालिफाई नहीं किया। 2012 में फिर उसके बाद क्वालिफाई के लिए खेले, वो भी क्वालिफाई नहीं किया। सो हमारा तो 4 साल के बाद आता है, हमारा तो एग्जाम भी कोई ऐसा नहीं है जो हर साल आता है तो हम सोचें कि अगले साल कर लेंगे। तो 4 साल हमें उस फेलियर से डील करना पड़ता है, और कोई गारंटी नहीं है कि 4 साल बाद भी आप सक्सीड होगे उसमें ना। I think a related question, Rani, is that, we're hearing a lot of concerns on mental wellness for sports people, mental wellness for employees across the industry, and it's a subject जो इंडिया में बहुत कम बात की जाती थी. As sports people, like you said, there's pressure of failure, there's pressure of success. You've gone through an injury recently. And I'm sure this has an impact on mental health for everybody, right? But how do you deal with, what would be your advice for people to deal with mental health issues? Because maybe you're made of stronger metal, many of us may not be.
तो उसमें आप क्या एडवाइस करेंगी लोगों को कि if you are going through a difficult phase, how do you deal with mental health issues and how do you talk about it? What advice should you get? यस, मेंटल हेल्थ के लिए मुझे लगता है कि शायद हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन एवरी सिंगल डे हर कोई कुछ ना कुछ मेंटल हेल्थ का इशू फेस करता है. जैसे मैंने पहले बोला कि सबकी लाइफ में डिफरेंट स्ट्रेस हो सकता है. यू नो, किसी के पास जॉब का स्ट्रेस है, किसी के पास फैमिली का है, किसी के पास मे बी अपने बच्चे का स्ट्रेस हो सकता है. सो सबकी लाइफ में या अपनी हेल्थ से रिलेटेड कुछ स्ट्रेस हो सकता है, तो सबकी लाइफ में होता है. जैसे हम भी बहुत सारी मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं वो फेस करते हैं. आपको एक जैसे अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि हम ऑन द फील्ड जो हम फेल्यूर फेस करते हैं एंड वो प्रेशर, बिकॉज जब आप कुछ अच्छा करते हो तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं आपसे, और एवरी सिंगल डे वो प्रेशर आप कैरी करते हो अपने साथ ना. वो एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर जो होता है कि हमें उस लेवल पे उस लेवल पे उतना तो हमें खेलना ही पड़ेगा जितना हम ऑलमोस्ट हमेशा खेलते हैं, या उससे ज्यादा ही खेलना पड़ेगा, हम उससे नीचे नहीं आ सकते. सो मेरे जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं कि मैं शुरू से जब से मैंने शुरू किया है खेलना, इंजरीज बहुत रहती है मुझे ना, बहुत ज्यादा इंजरीज रहती हैं. 2007 में जब मैं पहली बार कैंप में आई तो उस टाइम मैं वेट ट्रेनिंग कर रही थी, तो मेरी बैक के ऊपर वेट गिर गया था. मेरा खुद का वेट, बॉडी वेट उस टाइम पे 36 kg था एंड मैंने 80 kg के वेट के साथ स्क्वाट किया तो वो वेट मेरे ऊपर गिर गया था. तो जिससे क्या हुआ कि मेरे को बहुत सीरियस बैक इंजरी हो गई थी एंड आई वाज लाइक कि मेरा करियर खत्म हो गया, क्योंकि मैंने तो अभी खेलना भी शुरू नहीं किया था इंडिया के लिए, ना मेरे पास जॉब थी, कुछ नहीं था. तो कि मेरा करियर खत्म हो गया एंड मैं तो अब कभी हॉकी खेल ही नहीं सकती, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया कि 10 मंथ आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा. एंड 10 मंथ में तो एक प्लेयर का करियर वैसे ही बेड रेस्ट पे तो खत्म हो जाता है. अगर उसको आप बोलोगे कि एक्टिव रिकवरी करनी है तो ठीक है, वो कुछ ना कुछ कर सकता है. तो मैंने तो वहाँ मतलब शुरू से बचपन से मेंटल हेल्थ को जिसको बोलते हैं ना वो फेस किया है कि वहां से फिर आपको पता है कि आप इतनी ऐसी फैमिली से आ रहे हो, अगर आपने भी कुछ ना किया, आपने भी कुछ जॉब ना ली, कुछ ना किया, तो फिर फैमिली तो स्ट्रगल कर ही रही है, आप भी वैसे ही स्ट्रगल करोगे. एंड अभी भी मैं इतने सालों से मैं इंजरीज के साथ ही कुछ ना कुछ इंजरीज चलता रहता है, लेकिन उसको डील करने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहली चीज है कि पॉजिटिव हमें सोचना शुरू करना चाहिए. आई नो नेगेटिव सोचना बहुत इजी है, क्योंकि वो नेगेटिव थॉट्स तो 1 सेकंड में आ जाती है हमारे दिमाग में ना. अभी बैठे हैं ना, हम किसी की बात करेंगे तो वैसी नेगेटिव थॉट आ जाती है, किसी के लिए भी अपने लिए आनी शुरू हो जाती है. हमें एक स्टेज पे आके ऐसा लगने लग जाता है कि सब कमी मेरे अंदर ही है, या मैं ही कुछ नहीं कर रहा लाइफ में ना, या सबको मेरे से ही प्रॉब्लम है, या मैं कुछ भी करना चाहता हूँ वो कभी अच्छा नहीं होता. ये सबके साथ होता है. हम अपने आप को बहुत सारा ब्लेम करना शुरू कर देते हैं बिकॉज हम किसी ना किसी रीजन से परेशान हैं. तो सबसे पहले पॉजिटिव सोचना शुरू करें. और सेकेंडली मैं यही बोलूंगी कि आप सभी, आई नो सब बहुत बिजी रहते हो अपने काम में ना, लेकिन 20 to 30 मिनट्स निकाल के ना अपनी हेल्थ के लिए डेली कुछ ना कुछ किया करो. कुछ भी हो सकता है, वो वॉक हो सकती है, जॉगिंग हो सकती है, या जिम हो सकती है, योगा हो सकता है. उससे ना आप कभी देखना आपका दिन की जो एनर्जी है ना आपको फील होगी, वो डिफरेंट ही फील होती है, बिकॉज आप अपने आप को कुछ तो टाइम दे रहे हो ना. अदरवाइज हम हमेशा दूसरी चीजों के बारे में ही सोचते रहते हैं कि फैमिली के बारे में सोच लिया, जॉब के बारे में सोच लिया, लेकिन अपने बारे में हम कभी भी नहीं सोचते, कभी भी नहीं सोचते. और थोड़ा सा जितना हम दूसरों के साथ काइंड होने के लिए कोशिश करते हैं कि हम दूसरों से प्यार से बात करें, प्यार से बोलें, तो शायद हमें अपने आप को भी वैसा थोड़ा ट्रीट करना चाहिए. थोड़ा ब्लेमिंग अपने आप के लिए भी कम करके, कि ऐसे टाइम पे ना छोटी छोटी विंस जो है ना वो बहुत मैटर करती है हमारे लिए ना. छोटी छोटी एप्रिशिएशंस खुद के लिए ना, स्मॉल विंस जिसको बोलते हैं ना, कि आज मैंने दिन का ये काम अच्छा किया, आज मैंने दिन का ये काम, चाहे वो छोटा सा ही काम हो, उससे क्या है ना आपको मेंटल पीस बहुत मिलती है. एंड अगर आप प्रेयर में बिलीव करते हो तो प्लीज डू इट, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है. बिकॉज मैं वही करती हूँ अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी कामनेस के लिए ना, कि मैं प्रेयर करती हूँ कि जिससे थोड़ा मेरा माइंड काम रहे एंड मैं एक अच्छा सोच सकूं. She's also very fond of Punjabi music, as she was telling me. So that's another way to divert your mind and attention. Don't only focus on
on all the time the one thing that you're doing professionally. So clearly, I think there's lots of learning for us. We'll open this for audience questions. We have the last 10 minutes. Can we get the mics, please? There's a question here, there's a question there. Rani ji, thank you for being here. A truly inspiration story. And I think आपके माताजी और पिताजी ने कुछ सोच के ही आपका नाम रखा होगा. I think you are a queen of the Indian women's hockey. So I have a question. Now you're a senior player, so a lot of young players must be walking up to you, boys and girls. So what is the advice that you give to them? And also what is the advice you give to their parents? Because I have seen lot of parents are too interfering. They want quick success from their children and they expect too much. So आपकी क्या सलाह है उन बच्चों को और उन पेरेंट्स को? सबसे पहले मेरी बच्चों को तो यही सलाह है कि आजकल क्या है ना, बच्चों को आप सबको पता है मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस को प्लेटर पे मिलता है ना सब कुछ, कि क्योंकि अगेन मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था ना कि हर पेरेंट्स चाहता है कि जो शायद मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा या मुझे नहीं मिला मैं अपने बच्चे को दे दूं, वो हर कोई चाहता है क्योंकि पेरेंट्स का दिल वैसा होता है. सो समटाइम्स ज्यादा मिलना भी अच्छा नहीं होता, बिकॉज मुझे लगता है जैसे मेरे केस में तो यही था कि मुझे गरीबी ने बहुत कुछ सिखाया एंड आई डोंट वांट कि बच्चे सब गरीबी में पैदा हों, ऐसा नहीं होना चाहिए. बच्चों को यही एडवाइस है कि जो भी आपके पास बेस्ट पॉसिबल है आपको उसमें एडजस्ट करना आना चाहिए और आपका लाइफ में कोई गोल होना चाहिए कि आपको करना है क्या लाइफ में ना. ऐसा नहीं कि आप ये भी कर रहे हो वो भी कर रहे हो वो भी कर रहे हो लेकिन आप 100% किसी में भी फोकस नहीं कर रहे हो. सो एक कोई गोल होना चाहिए लाइफ में एंड उसके ऊपर 100% फोकस करो एंड वट एवर जो भी लाइफ में उसके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी कुछ भी आएगी उनको वो होना चाहिए कि मैं उसको फेस करूंगा एंड मैं उसके लिए काम करूंगा. एंड अगर आप उसमें नहीं सक्सेस हो रहे एंड देन आप फील्ड तो कभी भी चेंज कर ही सकते हो, वो तो आपके पास ऑप्शन है ही. एंड देन पेरेंट्स को ये एडवाइस है कि आप जितना ज्यादा बच्चे की उसमें इंटरफेयर करोगे ना वो बच्चा कभी लाइफ में ग्रो नहीं करेगा आगे ना. बिकॉज होता क्या है ना, आप एक स्टेज तक उसको आप हर चीज में इंटरफेयर करोगे, हर चीज में उसको उसके साथ खड़े रहोगे. एक स्टेज आती है जब उसको ना कुछ चीजें ना अकेले ही फेस करनी पड़ेंगी. आप उसके पीछे खड़े हो सकते हो बट आप उसके लिए लड़ नहीं सकते, आप उसके लिए काम नहीं कर सकते. अब जैसे मैं हूं ना, ठीक है मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे लिए पीछे खड़े रहे हैं लेकिन वो मेरे लिए ग्राउंड में खेल नहीं सकते, वो तो मुझे ही खेलना पड़ेगा ना. ऐसे आप सब लोग के बच्चे भी हैं कि जो जिस फील्ड में वो हैं, अगर वो पढ़ाई में है, स्पोर्ट्स में है, किसी भी में है, काम तो उनको खुद ही करना पड़ेगा. हम सिर्फ उनको गाइड कर सकते हैं कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए. तो पेरेंट्स को यही एडवाइस है कि ज्यादा इंटरफेयर ना करें उनकी उसमें. एंड स्पेशली क्या होता है ना, टीचर्स वगैरह कहीं पर आजकल तो चलो कोई डांटने भी नहीं देता, पेरेंट्स तभी जाके खड़े हो जाते हैं. मारना तो बहुत दूर की बात है कि हमारे बच्चे को कैसे डांट दिया. आप इमेजिन नहीं करोगे, आप कभी मतलब देख लेते ना हमें कैसे मार पड़ती थी. एक दिन मैंने किया अपने पेरेंट्स से ना, मैंने अपने पापा से ये क्वेश्चन किया कि आपको कभी तरस नहीं आया हमारे ऊपर ना कि हमें इतनी मार पड़ती थी, हमारे हाथ नीले हो जाते थे स्टिक खा के, तो आपको कभी तो तरस आया होगा ना कि हमारे बच्चों को इतना मारते. आपने कभी जाके नहीं पूछा उनसे. तो उनका आगे से जवाब पता क्या था कि हमें पता था कि वो तुम्हारे सही के लिए मार रहे हैं, तो अगर हम उस टाइम इंटरफेयर करते ना तो तुम आज इस जगह पे ना होते. We have a question there. मैम, सबसे पहले तो मैं आपको सैल्यूट करूंगा, आपके जो भी देश के लिए आपने योगदान दिया इसके लिए सैल्यूट करता हूँ. आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ का जो थे इसके बारे में बताया और आप जिस बैकग्राउंड से आपने बताया उसके अंदर जैसे हम जानते हैं कि लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल एंड सक्सेस इज़ फुल ऑफ फेलियर. तो मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द biggest struggle in your life, in your social life, and how you handle it? Good question. I don't know if it's off syllabus, but you can feel free to answer or not. बिगेस्ट स्ट्रगल मेरे लिए स्टार्टिंग का था कि पेरेंट्स को कन्विंस करना एज अ गर्ल कि मुझे हॉकी खेलना है. वो सबसे बड़ा स्ट्रगल था क्योंकि अगर वो अलाउ ही ना करते तो मैं भी क्या कितने भी मेहनत कर लेती तो मैं क्या करती अगर मैं खेल ही ना पाती.
सेकंड थिंग वाज पॉवर्टी, कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि स्पोर्ट्स के लिए तो आपको अच्छी डाइट चाहिए, क्योंकि अगर आप 3 घंटे वहां पे इतना भाग रहे हो, इतना काम कर रहे हो, तो आपको वैसा खाना भी चाहिए। और हमें पता ही नहीं था हमें सेकंड टाइम का मील भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं जैसे आपको बताऊं, हमारी एकेडमी में रूल होता था कि सब बच्चे सुबह जो है वो 500 ग्राम दूध लेके जाएंगे एकेडमी में ना, पीने के लिए। तो हमारे घर तो सच ऑनेस्टली बताऊं, 500 ग्राम तो पूरी फैमिली के लिए भी नहीं आता था दूध ना, तो मुझे अकेले तो लेके जाना बहुत मुश्किल था। तो मैं क्या करती थी, मुझे पता है वो मुझे ही पीना है, मेरे ही अंदर जाना है वो दूध, लेकिन 100 ग्राम दूध लेके उसमें 400 ग्राम पानी डाल के फिर मैं उसको लेके जाती थी। मुझे पता है मैं अपने साथ ही चीट कर रही हूँ और किसी के साथ, बट क्या करे उस टाइम हालात ऐसे थे। बट यही है कि नेवर गिव अप। रानी, एक तो आपका यहाँ आने के लिए थैंक यू, बाकी सब ने भी बोला ही है, लेकिन फिर भी मैं इस बात को रिपीट करना चाहूँगा। 2003 की बात है, मैं ट्रेन से बॉम्बे से दिल्ली लौट रहा था और मेरे को लगा कि मैं सामने वाले बंदे को शायद कहीं देखा है, और मैंने उनसे पूछा तो वो वीरेन रस्कना थे। और मुझे ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बंदा, मैं इसको टीवी पर देखता हूँ यार, मैं इनको इतना पसंद करता हूँ और ये इतनी बड़ी जगह पर हैं, ये भी एक ट्रेन से ही ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि ये हॉकी में क्या हमारी सिचुएशन जो है ऐसी क्यों है, या और क्या हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ केवल पूरी कंट्री में 6 एस्ट्रो टर्फ ग्राउंड है, और केवल अकेले उन्होंने किसी शहर का नाम लिया था, तो डरबन था, साउथ अफ्रीका का कोई शहर था, उन्होंने बोला कि वहाँ ऑलमोस्ट हर स्कूल में है। अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ भी इसी तरह की फैसिलिटीज़ आ रही हैं। आपके हिसाब से अब इंडिया में क्या हम मेडल्स की बाढ़ देखने वाले हैं, या ऐसा हम क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से अब हमें स्पोर्ट्स में भी इतनी सक्सेस मिल रही है और कंट्रीज़ के बनिस्बत। तो ऐसा हम एक तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि मतलब क्या नाम है, आगे वाला आने वाला कल हमारे स्पोर्ट्स में इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, और दूसरा ऐसा हम और कंट्रीज से अच्छा क्या कर रहे हैं या कर सकते हैं जिससे कि हम उस तरफ और कोई और सक्सेस देखें। थैंक यू। नहीं, डेफिनेटली पहले से चीज़ें बहुत चेंज हुई है। जैसे आपने बताया कि आपने जब वीरेन रिस्किना के साथ बात की तो उन्होंने बोला कि 6 ही एस्ट्रो, एंड वो सच है कि पहले हमारी कंट्री में इतने एस्ट्रो टर्फ ही नहीं होते थे। एंड अगर आप बात करो हॉलैंड की, तो हॉलैंड हॉकी में, वुमेन्स हॉकी में तो एटलीस्ट नंबर 1 है, वर्ल्ड नंबर 1 है पिछले आई थिंक 20 सालों से। सो उनका रीज़न भी वही है कि एक तो मुझे लगता है जितना हमारा दिल्ली है उतना तो उनका कंट्री है, सबसे बड़ा रीज़न तो वही है, एक है ना पॉपुलेशन का ही, कि इतना छोटा सा तो देश है, मैनेज करना भी ईजी है। लेकिन उनका जितने भी हॉकी क्लब्स हैं, एक क्लब में ही उनके 7-7 एस्ट्रो टर्फ लगे हुए हैं। तो इमेजिन उनके अगर 10 क्लब भी होंगे तो कितने टर्फ हो जाते हैं। तो अभी लेकिन बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी हैं पहले से देखते हुए, कि जैसे गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स बच्चों के लिए लेके आ रही है, एंड जैसे खेलो इंडिया वगैरह का प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए एक बहुत अच्छे लेवल का टूर्नामेंट होता है, जहां बच्चों को लगता है कि हम कोई अच्छा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, जो पहले नहीं होता था। और एक अच्छा बच्चों को उसमें फाइनेंशियली भी काफ़ी हेल्प होती है। एंड आने वाले टाइम में डेफिनेटली हमें काफ़ी मेडल्स जो हैं वो प्लेयर्स से देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अभी आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी देखा होगा हमारे बहुत सारे जूनियर प्लेयर्स जो हैं, जैसे जो अंडर 18, अंडर 20, 21 के हैं, वो बहुत सारे मेडल्स लेके आए हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं पिछले 5-6 साल में शुरू किया होगा, या उससे पहले ना, जो वो स्कीम में आए होंगे, खेले होंगे। तो इमेजिन अगर जो बच्चे अभी लास्ट 4 साल से जिन्होंने शुरू किया होगा, तो उनको हम ऑलमोस्ट 2028 नहीं तो 32 ओलंपिक्स में हम उनको देख सकते हैं कि वो हमारी कंट्री के लिए मेडल लेके आएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अभी बहुत सारी चीज़ें बच्चों के लिए कर रही है। एंड वैसे भी स्पोर्ट्स में बहुत चेंज लेके आ रहे हैं वो लोग ना, कि जैसे अभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एथलीट कॉन्टिनेंट खेल के आता है तो वो प्राइम मिनिस्टर उनको बुलाते हैं। उससे क्या आता है, बच्चों को इंस्पिरेशन मिलती है कि अच्छा ऐसा करने से ये प्राइम मिनिस्टर को मिलने का एक अच्छा मौका है, हम भी कभी ऐसे मिल सकते हैं अगर हम कंट्री के लिए कुछ करेंगे। तो ऐसे एक इंस्पिरेशन चाहिए बच्चों को काम करने के लिए ना। वो जब बच्चे देखते हैं ना तो वो ज़्यादा सीखते हैं। आप उनको कितना भी बोलते रहोगे ना, वो सुनने से इतना नहीं समझते, उनको समझ नहीं आती वो चीज़, जितना वो देखने से समझ में आती है। क्योंकि हमने भी खुद देख के ही सीखा है। हमें भी बहुत समझाते थे बचपन में ना कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा होता है, बट समझ ही नहीं आता था, क्योंकि वो मैच्योरिटी नहीं है ना, उस लेवल पे तो आपकी होती नहीं है। तो डेफिनेटली मेडल आएंगे, ऐसा नहीं है, ऑलरेडी मेडल्स बढ़ने शुरू हो गए इंडिया के, लेकिन आने वाले और 10 साल में अगर हम बात करें तो ज़्यादा मेडल्स आएंगे।
रानी जी, आई कम फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड एंड मैंने अपने पिताजी से क्वेश्चन पूछा था एंड ही वाज इन ट्रेनिंग इन एन इंडियन नेवी, सिंह आपका सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है व्हेन यू ट्रेन पीपल? एंड ही सेड द सबसे बड़ा स्ट्रगल ये है कि वी हैव पीपल कमिंग फ्रॉम ऑल द स्टेट्स एंड दे कम फ्रॉम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लोकल बैकग्राउंड. सो आपके लिए क्या वो स्ट्रगल था बीइंग अ कैप्टन टू मैनेज सच अ डाइवर्स सेट ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स and influenced with the local flavor, and they come from a very strong local community, right? और आपने उसको कैसे मैनेज किया? यस, इंडियन टीम में ऐसे ही होता है क्योंकि डिफरेंट स्टेट से सब प्लेयर्स आते हैं, डिफरेंट कल्चर से आते हैं, डिफरेंट माइंडसेट के लोग होते हैं डिफरेंट स्टेट्स में. तो हमारे इंडियन टीम्स में भी ऐसे ही होता है कि कोई झारखंड से है, कोई उड़ीसा से है, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से, कोई यूपी से है, कोई महाराष्ट्र से है. लेकिन वहाँ पे क्या है ना, जब तक आप स्टेट्स में खेलते हो ना तो आप अपने स्टेट्स के बारे में सोचते हो कि जैसे मैं हरियाणा से खेलती हूँ तो कि हरियाणा जीतना चाहिए, हरियाणा जीतना चाहिए, हरियाणा टॉप पे रहना चाहिए. लेकिन जब आप वहाँ पे आते हो ना तो वो चीज़ स्टार्टिंग से सिखाई जाती है कि आपके सामने फ्लैग दिया जाता है आपको कि आज के बाद अगर आप यहाँ पे हो तो आप इस फ्लैग के लिए खेलोगे. आप ठीक है, आपका जो भी कल्चर है आप उससे जुड़े रहो हमेशा, उस कल्चर से आपको कोई दूर नहीं कर रहा, लेकिन आपके दिल और दिमाग में सिर्फ तिरंगा होना चाहिए कि आपको उसके लिए खेलना है. I think we're running out of time, but there's a question here. So, Hi, I am Akhil. Ma'am, first of all, thank you so much. The way you're conducting, it's beautifully done. There's a lot of softness in this entire session. So thank you. रानी जी, आपकी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है. मेरा 8 years का एक बेटा है और उसको भी अभी बास्केटबॉल का बहुत शौक है, बट मेरे से हमेशा वो पूछता है कि नेशनल्स, whenever team they are playing, they play for India, मैं कैसे आई कैन गो टू द नेशनल लेवल. तो एक क्वेश्चन तो मेरा आपके लिए ये है कि जो फर्स्ट स्टेप, वी ऑल, द फर्स्ट स्टेप इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप, तो वो फर्स्ट स्टेप कैसे पूरा करें. सेकेंड, सोशल मीडिया है, डिस्ट्रैक्शन है, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रखते हो? फर्स्ट क्वेश्चन का तो मैं ये बोलूंगी कि बहुत अच्छी बात है कि वो बास्केटबॉल खेलता है और यंग एज में खेलता है, एंड अच्छी बात है कि वो अभी से ऐसा सोचता है कि मैं नेशनल टीम में कैसे जा सकता हूँ. अगेन अगर आप उसको समझा सको तो उसको समझाना कि कहीं पे पहुंचने के लिए बहुत साल लगते हैं. एक आई नो आजकल पेरेंट्स को भी जल्दी सक्सेस चाहिए और बच्चों को भी जल्दी सक्सेस चाहिए कि आज शुरू किया तो हमें 1 साल में सब कुछ मिल जाना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है. बिकॉज जो हमारे से पीछे वाले हैं उन्होंने भी ऑलरेडी 10-10, 12-12 साल लगाए हैं वहां तक पहुंचने के लिए ना. तो अच्छी बात है उसको थोड़ा समझाना कि आप डेली मेहनत करते रहो, ईमानदारी से मेहनत करो, और ऐसा नहीं है कि जो मेहनत करता है उसकी मेहनत कभी रंग नहीं लाती है. मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिकॉज आप जैसे मैंने आप सबको बताया, मेरे तो आगे पीछे कोई भी ऐसा नहीं था ना कि जिसको मैं सोचूं कि इसकी सपोर्ट से मैं कुछ कर लूंगी, वो कर लूंगी. जो किया ये था कि खुद की मेहनत से ही करना है जो भी करना है. सो एंड सेकेंड क्वेश्चन इज रियली डिफिकल्ट आज के टाइम में आंसर करना ना, सोशल मीडिया एंड फोन्स बच्चों के लिए ना, बिकॉज फोन्स तो बच्चों की जान बन चुकी है, एंड फोन्स के बिना खाना नहीं खाना है. फोन्स नहीं दोगे तो पेरेंट्स भी यही सोचते हैं कि ठीक है तू फोन ले ले, आराम से बैठ जा, लेकिन चैन से ना. द शॉर्टकट वे है पेरेंट्स के लिए ना कि तू आराम से बैठ जा, परेशान मत कर. ऐसा ही होता है, मुझे तो ऐसा लगता है, मतलब क्योंकि हम अपने फैमिलीज में भी यही देखते हैं बच्चों के साथ. लेकिन कहना अगेन, बच्चे देखने से सीखते हैं, क्योंकि आजकल हम खुद क्या करते हैं, मतलब एज अ पेरेंट्स क्या करते हैं बच्चों के सामने ना, घर जाएंगे फोन चलाना शुरू कर देते हैं, एंड बच्चे देखते हैं, फिर हम उसको कैसे बोलेंगे ना कि आप फोन मत चलाओ. वो आगे से फिर यही बोलते हैं आप भी तो चला रहे हो, बोलते हैं ना, मोस्टली बच्चे तो बोलते होंगे ऐसा ना. तो ठीक है, अगर आपका कुछ काम है, जॉब से रिलेटेड काम एंड ऑल, ठीक है आप करें, लेकिन बच्चों के सामने जितना कम यूज करोगे फोन उतना अच्छा है, क्योंकि जो हम करेंगे वो देखते हैं, वही वो सीखते हैं. एंड उसके अलावा उनको ऑप्शंस दो आप करने के लिए ना, कि वो क्या कर सकते हैं. फोन के लिए टाइमिंग दो, ऐसा नहीं कि आप उनको परमानेंटली बंद कर दो, ऐसा नहीं हो सकता. आज के टाइम में नहीं हो सकता ना करना चाहिए ऐसा ना, कि क्योंकि हमें पब्लिक के साथ भी हमें इन टच में रहना चाहिए, कि पता होना चाहिए कि आजकल देश में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है. उनको टाइमिंग दो थोड़ा, कि 1 घंटे का टाइम है आपके पास, या आधे घंटे का टाइम है, कि अगर तूने ये काम कंप्लीट किया तुझे आधे घंटे के लिए फोन मिलेगा.
सीरियसली काम करता है, मतलब हमारे घर में तो करता है एटलीस्ट मेरे नेफ्यू नीज हैं तो वो ऐसे ही करते हैं, उनको फ़ोन चाहिए, खाना नहीं खाना है फ़ोन चाहिए, तो उनको यही बोला जाता है कि आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया, आप अगर आप 1 घंटा बाहर खेलने जाओगे तो आपको आधा घंटा फ़ोन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो वो उस लालच में फिर वो बाहर भी चले जाते हैं कि हमें उसके बाद फ़ोन मिलेगा। तो प्लीज़ आप, पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो हमें निभानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आप सभी को, अगर बच्चों को हमने सक्सेस तो देखना चाहते हैं तो There are no shortcuts in life, and Rani, you truly are the, as Paresh said, you are the Rani of Indian hockey. You will inspire, you are inspiring the next generation of women who will play hockey in this country. Thank you so much for coming and sharing your story so honestly and with so much emotion with all of us. It's left us all very inspired, and truly we've taken back a bit of your story and your life with us. Thank you so much. We're truly honored. Let's have a... Thank you. Thank you, Rani ji. I think this says it all. सुबह से हमारे को एक script है, Pooja and I have a script, and we're, doing this discussion around that framework. At least we don't have a script that justifies this session, and I can't possibly think of a better way to conclude today's event. Thank you for so much. Thank you for giving us a dream. And everybody is on their feet. I think one of the very few discussions that I've been a part of where people have blinders on and pin drop silence, everybody is just listening. Thank you, thank you, thank you. Can we have a thunderous round of applause for our very own Padma Shri Rani Rampal ji. Thank you so much. And may I also request Miss Sangeeta Gupta to please lead the felicitation for our very own Padma Shri Rani Rampal ji. Sangeeta, can I please also to give away token of gratitude to our MCs for the day. They were fantastic throughout the day. So please, Gaurav, may I please request you to accept this from our side. Pooja, please. Thank you so much, Gaurav, Pooja. You have been fantastic throughout the day. You have put in a lot of time, energy. Thank you so much.